Good morning everybody. Today we have come up with two more problems based on superposition theorem. So you try these problems after pausing the video and try what you get the answer. Check the description of the video to get the answers to verify your answers. In case your answers are good and matching with the solution with the answers given in the description note, then you can proceed further. In case it is not, you can see the video to match your solution with this standard solution. Moving on further, so there are two numerical problems. One contains only independent sources, okay, and the second problem contains dependent source also, okay. Dependent source होने से because of the presence of dependent source it hardly makes any difference to the concept, लेकिन मैथमेटिक्स में गणित में एक न्यूमेरिकल वेरिएबल और बढ़ जाता है बस, और कोई भी फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉब्लम नंबर वन को देखें तो प्रॉब्लम नंबर वन में एक इंडिपेंडेंट सोर्स ये है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स ये है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स ये, देयर आर थ्री इंडिपेंडेंट सोर्सेस, okay. So we have taken the solution separately. Have a look at this. Okay. मैंने इस numerical problem को दोबारा से redraw कर लिया है and I have drawn it off the video so that it does not increase the video length. Okay. Now what I am doing, I will take three steps. Okay. One step for 10 volt, one step for 20 volt, and one step for 10 ampere. Okay. So I'm writing the solution here. You please verify. Step 1, step 1, when I am considering only 10 volt voltage source. This voltage source I am considering. Okay. I will disable this and I will disable this. When I disable a voltage source, I remove it, I substitute it with a short circuit. When I disable a current source, I substitute it with a open circuit. इसकी जगह हटा के ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट लगाऊंगा, इसकी जगह हटा के ओपन सर्किट लगाऊंगा। ओके, मूविंग ऑन, देखिए कैसा हो जाएगा प्रॉब्लम। 10 volt voltage source, 9 ohm resistance as it is, then this is 6 ohm, this is also 6 ohm, this gets short circuited, okay, and this is 5 ohm, ठीक है। अब जो करंट हो जाएगी वो I1 हो जाएगी, और अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको हम हटा देंगे, it will be removed with short circuit. So now I have disabled two sources and I1 can be calculated like this. Have a look at this. अब आप ध्यान से देखो, अगर इस पर्टिकुलर सर्किट में मैं इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 6 ओम और ये 5 ओम जो रेजिस्टेंसेज हैं ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है, 9 ओम और 6 ओम, ध्यान से देखो। और मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, रीड्रॉ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपका 6 और 5 पैरेलल में आ जाएगा, 5 एंड 6, ठीक है। और बी और इस पॉइंट को मान लो सी,
बी और सी के बीच में 9 6 15 आपका सीरीज में। ये सर्किट बहुत सिंपल हो गया है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो करंट यहाँ से ऐसे आ रही होगी इस तरीके से, है ना। दिस करंट वी कैन कैलकुलेट, और उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो करंट इन दोनों में कैसे डिवाइड होगी। कि हम चेक कर लेते हैं कितनी करंट आती है। करंट ऐसे नहीं आएगी, प्लस टर्मिनल से शुरू होगी, ऐसे आएगी। The direction of the current is not correct. तो कितनी हो जाएगी करंट? बहुत ही सिंपल सी बात है। करंट पहले ही 5 और 6 का पैरेलल निकाल लो। 5 और 6 का पैरेलल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 6 अपॉन 5 प्लस 6, तो हो जाएगा, सॉरी, 5 इंटू 6 अपॉन 5 प्लस 6, 11, and that is 30 upon 11 ohm. So current I will be equal to 10 upon 30 upon 11, and that is how much? That is 11 upon 3 ampere. 11 upon 3 ampere. ठीक है। So this is this current which is coming from here. अब बताओ 5 और 6 पैरेलल में हो गए, तो हमको निकालना है जो 5 के थ्रू जानी है। तो करंट क्या हो जाएगी? I1 will be equal to opposite resistance, that is 6 upon total resistance 5 plus 6, और जो करंट टोटल आ रही है I, तो ये कितनी हो जाएगी? 6 upon 5 plus 6, that is 11, और 11 upon 3 टोटल करंट, ये कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। तो ये हमें समझ में आ गया कि I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। अब हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। एंड वी विल बी selecting this. How do we select? Okay, we will be selecting this numerical again. ओके, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या करा था? हमने कंसीडर किया था सिर्फ 10 वोल्ट को, इस वाले को। हम किसको कंसीडर करेंगे? 12 वोल्ट को। ओके, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट को। स्टेप टू आई एम कंसीडरिंग ओनली 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। अब क्या हो जाएगा? ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? ठीक है, सॉरी, इसको हटाना भूल गया मैं, इसको हटा दे रहा हूँ, ये हट गया। ठीक है, निकालना है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे होगा बताओ? नंबरिंग कर लो, ए, बी एंड सी। तो देखो ए और बी के बीच में 9 और 6 सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है, और वो 9 6 सीरीज में पैरेलल में है 6 ओम के साथ में। ठीक है, तो इस सर्किट को दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे। तो कैसा बनेगा? लाइक दिस। ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी। ये 9 और 6 किस में आ जाएंगे? सीरीज में। ये हो गया 15। ठीक है, और इसके साथ में पैरेलल में एक और आ रहा है 6 ओम का, ये हो गया। इसको मैं इधर बना लेता हूँ। ओके, 6 ओम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बी पॉइंट से 5 ओम निकालेंगे। ठीक है, 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है बी पॉइंट से, और ए से एक बैटरी लगी हुई है, दैट इज 20 वोल्ट। तो ये क्या हो गया? सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका 5 ओम।
ये हो गया 5 ओम और ये करंट की वैल्यू हो गई I2. दिस करंट इज I2. Okay, now we can calculate I2 very nicely. तो हम equivalent resistance निकालेंगे और उस current की value निकाल लेंगे. तो I2 will be equal to 20 upon 15 और 6 का parallel plus 5. 15 और 6 का parallel कितना होगा? 15 parallel 6 will be equal to 15 into 6 upon 15 plus 6, and that is 15 into 6 upon 15 6 21, and this is 3 5 is 15, 3 7 is 21, so it is 5 6 is 30 upon 7. So if we will substitute this, we will get, okay, after we do very small calculations, we will get I2 equal to 8 upon 3 ampere. Okay, so I am moving on again with the step 3, and that will be considering 10 ampere current source only. So I am selecting this image one more time, opening it, pasting it. So अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंसीडर करूँगा 10 एम्पियर, इन दोनों को इग्नोर कर दूंगा. तो स्टेप नंबर 3 इज कंसीडरिंग 10 एम्पियर. आप पूरा लिखोगे सॉल्यूशन. ओके, सो मूविंग ऑन, मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाता. दैट विल बी, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये बैटरी शॉर्ट हो गई और ये वाला भी वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया. ठीक है, ये हो गया 9 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 5 ओम, एंड दिस इज 10 एम्पियर. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को बोल देंगे I3. अब आप I3 निकाल सकते हो. क्या होगा बताओ, इसको नंबरिंग करो, A B C. ठीक है, करंट ये निकालना है. सबसे पहले टोटल करंट 10 एम्पियर आ रही है, तो ये 10 एम्पियर यहाँ और यहाँ कितनी डिवाइड होगी, ये कैसे पता चलेगा? ए और बी के बीच में. ठीक है, तो पहले तो हमें ये करंट पता चले, बी ए करंट जो 6 एम्पियर 6 ओम से फ्लो कर रही है, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे. ये पता करने के लिए हमें पहले इन दोनों को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा. तो देखो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होगा. सी ए और बी के बीच में इसको थोड़ा सा हैंडल करते हैं. जस्ट अ मोमेंट, पहले हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा सर्किट को. ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं. देखो, 6 और 5 को पैरेलल ले लेते हैं और इस पैरेलल को यहाँ पे लिखते हैं. ओके, ए और सी के बीच में. तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप चाहो, कोई इशू नहीं. ये हो गया पॉइंट. Okay, so I have I need to redraw this image. I'm redrawing is C. This is point C, so this point should also be C because there is no resistance in between. So the point is electrically at the same potential. तो ये C है, तो ये भी C होगा. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि इसको मैंने मान लिया 9 ओम. ठीक है, मान के लिए है ये. और उसके बाद A और C के बीच में क्या आएगा, दिस इज C, दिस इज A. A और C के बीच में 6 पैरेलल 5 आएगा. देखो, ये दोनों पॉइंट, दो ही पॉइंट, ये दोनों रेजिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, A और C पॉइंट्स के बीच में. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, A और B के बीच में क्या है, 6 ओम अगेन, ये वाला 6 ओम. तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम बंद कर दो. ये
10 एम्पियर कहाँ लगा हुआ है? बी और सी के बीच में। ये हो गया, ये हो गया 9 या बी और सी के बीच करंट जा रही है बी के अंदर। तो ये सी से बी की तरफ जा रही है, ऐसा डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 6 और 5 का क्या होगा? 6 पैरेलल 5, यहाँ करो, यहाँ करो। 6 पैरेलल 5 will be 6 into 5 upon 6 plus 5, that is 5 6 are 30 upon, यहाँ पे लिख दो 30 upon 11, 30 upon, अब क्या होगा? आप इस करंट को डिवाइड कर लो, ये वाली करंट निकाल लो, ये करंट, ठीक है, which is flowing from A to C, and how much that current will be, हम इस करंट को मान ले रहे हैं IAC, that IAC will be equal to opposite resistance, that is 9 ohm, upon total resistance, that is 30 upon 11 plus 6 plus 9। अब गलती मत करना, ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये पूरा एक माना जाएगा और ये पूरा क्या माना जाएगा? एक माना जाएगा। तो ये टोटल हो गया 30 अपॉन 11 प्लस 6 प्लस 9, और अपोजिट में क्या है? 9 है, और टोटल करंट कितनी हो जाएगी? टोटल करंट हो जाएगी 10 एम्पीयर। तो यहाँ से IAC निकालो, that IAC will come out to be yes, that comes out to be 66 upon 30. So 66 upon 13 is the current which is flowing from, which is going inside the node, and coming out from the 6 ampere uh, from the C node. So we will divide it again. तो ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। Just a moment. This is point A and this is point C. This is 5 ohm and this is 6 ohm. Current flowing into the A node is IAC, and that is 66 upon 13 ampere. So can I calculate I3? I3 is this. Yes, I can very nicely calculate I3 will be equal to opposite resistance 6, 6 upon total resistance, that is 6 plus 5, and into IAC, that is 66 upon 30, and it will come out to be, yes, it will come out to be 36 upon 13 ampere. So if you look at all the answers, then you have to calculate step number 4 in superposition theorem, step number 4, and that step will be I net will be I1 plus I2 and plus I3. So what was I1? Have a look at I1. I1 was 2 ampere. So I1 was 2 ampere. Substituting 2 plus what was I2? I2 came out to be 8 by 3. And what is I3? What is I3? 36 by 13 ampere. 36 by 13 ampere. So what will be the answer? Yes, it will come out to be 7.435, that is 7.435 ampere. ठीक है, रेशियो फॉर्म में ये आएंगी 290 upon 39, 290 upon 39. I have used my calculator. You also please use Casio ClassWiz calculator. That will help you to do the calculations easily. Okay, any ClassWiz calculator, not Casio, where whatever you want you can use. So this is problem number 1. Problem number 2 I am solving. Okay. You also try. Please pause the video. Try first and then match the solution. Okay.
So this is problem number two. I'm copying. Oh, okay. So in this particular problem, we have to calculate the value of Vx, the node voltage Vx using superposition theorem. अगर आप इस particular problem को ध्यान दो, इस problem में कितने sources हैं? एक active source ये है 10 वोल्ट का, एक एक्टिव सोर्स ये है इंडिपेंडेंट 15 एम्पियर का, ठीक है। तो उसके अलावा ये 0.2 Vx का सोर्स लगा हुआ है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। So quickly move on to the solution. Let us consider only 10 volt voltage source. I am redrawing the circuit. Okay, I have redrawn the circuit. Circuit पे ध्यान दीजिए 10 एम्पियर 15 एम्पियर की करंट सोर्स को मैंने ओपन सर्किट कर दिया और 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एज इट इज रखा है, ठीक है। अब देखो आपको कैलकुलेट करना है Vx की वैल्यू, इसको Vx1 मान लो, तो वो क्या होगी बताओ। How can we calculate Vx1? So Vx1 very clearly, if you apply nodal in this particular solution, then Vx1 is coming out to be Vx1 is coming out to be 10 volt, ठीक है, ये 10 volt हो जाएगा। So this is one solution. Okay, so moving on to the next solution in which we will consider only 15 ampere, इसको हम शॉर्ट कर देंगे। देखो मैं फिर से redraw करता हूँ सर्किट। ओके, नाउ यू चेक द सॉल्यूशन। इसमें जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है और Vx की जगह Vx2 लिख दिया क्योंकि हम ये जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो Vx2 के लिए करेंगे। तो दिस इज स्टेप 2। हमने क्या कंसीडर करा है 15 एम्पीयर का करंट सोर्स। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब बताओ Vx2 किसके बराबर होगा? कैन वी कैलकुलेट इट? व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? Okay, now in this particular circuit, I hope it is clear to everybody. तो बेटा ये Vx2 जो है ये जीरो होगा। This Vx2 will be zero because this Vx2 is directly connected with the ground. फिर आप इसको ग्राउंड मानो तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है ग्राउंड से। या अगर ऐसे देखो ये करंट यहाँ से 15 एम्पियर आ रही है तो ये 20 ओम में नहीं जाएगी, ये करंट सीधे सीधे ग्राउंड में चली जाएगी जो लो रेजिस्टेंस पाथ है, ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड है। सिमिलरली ये 0.2 Vx2 जो है ये करंट भी सीधे सीधे ग्राउंड में जाएगी, इधर नहीं आएगी। तो दैट मीन्स इसमें कोई भी करंट नहीं आएगी इस 20 ओम के अक्रॉस। तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ समिंग अप द सॉल्यूशंस, स्टेप 3 क्या हो जाएगा? स्टेप 3 विल बी we will calculate the algebraic sum of Vx1 and Vx2. So Vx will be equal to Vx1 plus Vx2, and that will be, what was Vx1? Vx1 was 10 volt. Okay, Vx1 was 10 volt and Vx2 is 0. So Vx came out to be 10 volt. So this is all about these two problems. Thank you so much for watching the video. In case you find any doubts about it, please do not forget to comment on this video, and please like, share and subscribe the channel. Thank you so much and have a great evening.